ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ شرجیل امام، عمر خالد، میران حیدر، گلفشا فاطمہ، خالد سیفی، شفاء الرحمان، ان سب کو ایک مرتبہ پھر دلی ہائی کورٹ سے ضمانت نہیں مل سکی۔ ٹرائل کورٹ سے دو مرتبہ ان کی ضمانت کی عرضی خارج ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی ان لوگوں نے انصاف کی گہار لگائی تھی، لیکن وہاں سے بھی ان لوگوں کو کوئی مدد نہیں مل سکی۔ ان سب کا جرم کیا ہے کسی کو نہیں پتا، ان کا قصور کیا ہے، کیوں پچھلے 6 سالوں سے جیل میں بند ہے، کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ پولیس کی طرف سے، سرکاری وکلا کی طرف سے عدالت میں جو دلیلیں دی جا رہی ہے ان دلیلوں میں کوئی جان نہیں۔ وہ دلیلیں کیا ہے آگے میں آپ سے تفصیل بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ان 9 لوگوں کے ناموں کو جان لیجئے جن کے بارے میں دلی ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی۔ جولائی کے مہینے میں 2 ججز کی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور امید یہی تھی ان لوگوں کا مقدمہ لڑنے والوں کو، ان کے لائرز کو، ان کی فیملی کو، ان کے اہل خانہ کو، کہ اب ان سب کو ضمانت مل جائے گی، یہ جیل سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ بغیر ٹرائل کے ہی یہ لگاتار 6 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ ابھی تک پولیس نے چارج شیٹ فائل نہیں کیا ہے، ان پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود یہ جیل میں بند ہے۔ پہلا نام ہے شرجیل امام کا، دوسرا نام ہے عمر خالد کا، تیسرا نام ہے سلیم خان کا، چوتھا نام ہے شفاء الرحمان کا، پانچواں نام ہے اطہر خان کا، چھٹا نام ہے میران حیدر کا، ساتواں نام ہے شاداب احمد کا، آٹھواں نام ہے خالد سیفی کا اور نواں نام ہے گلفشا فاطمہ کا۔ ان سب پر الزام اتنا ہے کہ سال 2020 میں نارتھ ایسٹ دلی میں جو دنگا ہوا، جو فساد ہوا، جس میں 57 لوگوں کی موت ہو گئی، تو ان دنگوں کو بھڑکانے کا کام انہی لوگوں نے کیا تھا۔ پولیس کے پاس ثبوت کیا ہے کہ عمر خالد نے، شرجیل امام نے دنگا بھڑکایا تھا، دنگا بھڑکانے والوں کو، دنگا کرنے والوں کو سپورٹ کیا تھا؟ تو پولیس کے پاس ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیس صرف اتنا عدالت میں پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے اور ان تمام واٹس ایپ گروپ میں یہ لوگ موجود تھے۔ پولیس کی طرف سے عدالت میں دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جہاں پروٹیسٹ ہوتے تھے اس پروٹیسٹ کی لوکیشن یہ لوگوں کو شیئر کرتے تھے۔ تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لوگوں نے ایسی تقریریں کی جن تقریروں کے ذریعے ملک کا ماحول خراب ہونے والا تھا۔ چوتھی دلیل پولیس کی ہوتی ہے کہ لوگ مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنا چاہتے تھے۔ بس یہی 3-4 دلیل ہے اور ان 3-4 دلیلوں کی بنیاد پر ان سب کو نارتھ ایسٹ دلی دنگے کا ماسٹر مائنڈ پولیس نے بتا دیا اور ابھی تک عدالت میں ان کا کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ سال 2020 میں نارتھ ایسٹ دلی میں کیا ہوا تھا پہلے اسے جان لیجئے۔ 2019 کے آخر میں پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوتا ہے جس کا نام تھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ پہلے یہ بل تھا اور جیسے بل آتا ہے مسلمانوں نے، جامعہ کے اسٹوڈنٹس نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس بل میں یہی تھا کہ انڈیا کے آس پاس جتنے ممالک ہیں وہاں کی جو مائنورٹیز ہے ان سب کو انڈیا میں ریلیجن کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر شہریت دی جائے گی، صرف مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ جیسے بل آتا ہے اس بل کی مخالفت شروع ہو گئی، جامعہ کے اسٹوڈنٹس نے سب سے پہلے احتجاج کرنا شروع کیا، اس کے بعد شاہین باغ میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور پورے دیش میں احتجاج ہونے لگا۔ یہ بل دیش کے آئین کے خلاف تھا، سیکولرزم کے خلاف تھا، دستور کے خلاف تھا۔ اسی بیچ یہ بھی ہوا کہ مرکزی حکومت نے NRC کرانے کا فیصلہ کیا اور تب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ پہلے CA کے ذریعے باہر کے لوگوں کو لایا جائے گا، مسلمانوں کا نام NRC کے ذریعے ہٹایا جائے گا اور مسلمانوں کی شہریت انڈیا سے ختم کر دی جائے گی۔ دیش بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی بیچ فروری کے اخیر میں نارتھ ایسٹ دلی میں فساد ہو جاتا ہے 24، 25، 26 فروری کی تاریخ میں، اور نارتھ ایسٹ دلی کا جو علاقہ ہے مصطفیٰ آباد کا، جعفر آباد کا، سلم پور کا یا کھجوری کا پورا علاقہ اس فساد سے متاثر ہوتا ہے اور اس فساد میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا جاتا ہے، چن چن کر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، مسلمانوں کا جو کاروبار تھا، مسلمانوں کی جو دکانیں تھیں ان سب کا نقصان ہوتا ہے۔ ملت ٹائمز کی ٹیم نے گراؤنڈ سے اس فساد کو کور کیا تھا، ملت ٹائمز کے کیمرے کو بھی دنگائیوں نے توڑ دیا تھا، ملت ٹائمز کی ٹیم پر حملہ بھی ہوا تھا، لیکن لگاتار ملت ٹائمز نے گراؤنڈ پر جا کر رپورٹنگ کی، پوری سچائی دنیا کو دکھایا۔ دلی رائٹ کی رپورٹنگ کی وجہ سے ہی حکومت نے ملت ٹائمز کے ایک فیس بک پیج کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا تھا جس پر 1 ملین سے زیادہ 2021 میں ہی فالوور ہو چکے تھے، اور اگر ابھی تک وہ پیج رہتا تو الحمدللہ کئی ملین اس کے فالوورز ہو چکے ہوتے۔ بہرحال یہ نارتھ ایسٹ میں ہوا تھا اور دنگوں کے بھڑکانے میں جن لوگوں کا شروع میں نام آیا تھا اس میں ایک نام ہے کپل مشرا کا، جس نے سیدھے سیدھے پولیس کو دھمکی دی تھی۔ پولیس کی تصویر اس کے سامنے تھی، اس کے پیچھے تھی کہ اگر ان پروٹیسٹرز کو یہاں سے ہٹایا نہیں گیا، احتجاج کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ اور اس کے بعد ہی 24 فروری کو
दंगा शुरू हो जाता है और 3 दिन तक दंगा जारी रहा। न तो पुलिस ने इस दंगा पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की, न किसी और ने फसाद ज़दा इलाकों का दौरा किया। उस वक्त दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, दूसरी मुद्दत के लिए सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल ने भी इस फसाद को रुकवाने के लिए कोई अहम भूमिका नहीं निभाई। ये दंगा हो गया, फसाद हो गया। अब उसके बाद पुलिस ने उन तमाम लोगों को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो शाहीन बाग और सीए के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट का नुमाया चेहरा थे, जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जो मुल्क भर में होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में जा जाकर तकरीरें कर रहे थे। और उनमें सबसे पहले शर्जील इमाम को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। शर्जील इमाम पर यूएपीए का केस दर्ज किया गया और अगस्त के महीने में शर्जील इमाम को इन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद अगस्त में उमर खालिद को इन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद फिर मिरान हैदर, शफाउर रहमान और इस तरह उन तमाम 9 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ गई, जिसका मैंने शुरू में नाम लिया। और इल्ज़ाम लगाया गया कि यही सब दंगा भड़काने के पीछे थे, यही सब फसाद के मास्टर माइंड थे। अब ट्रायल कोर्ट में अभी तक मुकदमा चल रहा है और वहाँ इन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। सबसे पहले 2022 में इन लोगों ने ट्रायल कोर्ट में ज़मानत के लिए पिटीशन दायर की थी, लेकिन 2022 में ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी जाती है। उसके बाद दोबारा इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन मई 2024 में दोबारा ट्रायल कोर्ट से इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद उमर खालिद ने और कई दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 14 मरतबा सुनवाई टलती रही। आज सुनवाई होगी, फिर आज जब तारीख आई तो जज साहब नहीं आते हैं और कहा जाता है कल सुनवाई होगी। फिर जब कल की डेट पर लॉयर्स पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कल नहीं, अगले महीने सुनवाई होगी। और 14 मरतबा जब सुनवाई को टाला गया तब उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत की पिटीशन को वापस ले लिया। एक मरतबा फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और दिल्ली हाई कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल सका। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक जज है जस्टिस नवीन चावला और दूसरी हैं जस्टिस शालिंदर कौर। इन दोनों जजेस की बेंच ने आज फैसला सुनाया। तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी जाती हैं, रिजेक्ट की जाती हैं, यानी इनको ज़मानत नहीं दी जाएगी। ज़मानत देने के लिए जो ग्राउंड बनाया गया था वो ये कि पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है उसमें कोई सदाकत और जान नहीं है और इतनी सी दलील की बुनियाद पर, इतने से सबूत की बुनियाद पर किसी को 5 साल 6 साल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए इनको ज़मानत मिल जानी चाहिए, मुकदमा चलता रहे। अगर इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो जाते हैं फिर दोबारा इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उमर खालिद की गिरफ्तारी सितंबर 2020 में हुई थी, जो मैंने बताया, और इल्ज़ाम यही लगाया गया उमर खालिद पर कि इन लोगों ने फसाद भड़काने की साजिश की थी, इलीगल तरीके से पब्लिक इन लोगों ने इकट्ठा किया था। और जो पहली पिटीशन खारिज हुई थी मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट से, दूसरी पिटीशन खारिज हुई अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने पिटीशन दायर की, लेकिन 14 बार भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और फरवरी 2024 में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने एक बार फिर ज़मानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अब एडवोकेट कपिल सिब्बल या जो दूसरे लॉयर्स हैं जो दलीलें पेश कर रहे हैं कि क्यों इनको ज़मानत मिलनी चाहिए थी, तो उनकी तरफ से बचाव में दलीलें दी जाती है कि खालिद सिर्फ 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे और उसमें कोई भी ख़ास और अहम मैसेज इन्होंने नहीं भेजा था। प्रोटेस्ट के मकाम का या प्रोटेस्ट की लोकेशन शेयर करने की वजह से किसी के ख़िलाफ़ इस तरह का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तीसरी दलील ये दी जा रही है कि ये लोग किसी भी वायलेंस और तशद्दुद में शामिल नहीं थे, न ही इन लोगों ने किसी तरह की कोई फंडिंग की थी। चौथी दलील ये दी जा रही है कि इन लोगों की जो तकरीर थी, जो स्पीच थी, वो गांधीयाई उसूलों पर मबनी थी। महात्मा गांधी के तर्ज अमल पर ये स्पीच दे रहे थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो दंगा भड़काने वाला हो। पुलिस की दलील यह है और जो सोलिसिटर तुषार मेहता की तरफ से कही जा रही वो ये कि जो मुलजिमान हैं ये सब रिलीजन की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर देश को तकसीम करने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी दलील ये दी जा रही है कि लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपस में जुड़े हुए थे। और तीसरी दलील ये दी जा रही है कि सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए ज़मानत के हकदार नहीं है और सिर्फ
लंबे अरसे से जेल में बंद है इसलिए इनको जमानत मिल जाए, ये कोई ग्राउंड और बुनियाद नहीं है। ये दलील दी जा रही है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इन दलीलों में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है। दिल्ली दंगा को जिन लोगों ने भड़काया था, जो लोग इसके पीछे थे, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, बल्कि अब वो लोग सरकार में मौजूद हैं, उनको मिनिस्ट्री मिली हुई है। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उन दिनों मौजूद ही नहीं थे, जो लोग सिर्फ सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन तमाम को गिरफ्तार किया गया। वो सब के सब अब जेल में बंद हैं। और जो लोग जेल में बंद हैं उनमें उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम हमेशा सर फहरिस्त रहा। उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकल कर आए थे और उमर खालिद के साथ साथ कन्हैया कुमार भी जेएनयू में थे, लेकिन उमर खालिद पर यूएपीए का मुकदमा लगा। कन्हैया कुमार पर भी इस तरह का मुकदमा लगा था, लेकिन उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। उमर खालिद पर सीए के मामले में भी इल्ज़ाम लगा और वो जेल में बंद है। दूसरा बड़ा नाम है शर्जील इमाम का। शर्जील इमाम भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। शाहीन बाग प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में, उस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में उनका नुमाया किरदार था। शर्जील इमाम भी इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन शर्जील इमाम जेल में रहते हुए बिहार में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और बिहार में किशनगंज लोकसभा में बहादुरगंज असेंबली सीट है जहां से शर्जील इमाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी जो टीम है वो तैयारी कर रही है, ग्राउंड पर इनके लोग मौजूद हैं। और अगली किसी वीडियो में मैं तफसील बताऊंगा कि क्या पूरा प्लान है, किस तरह शर्जील इमाम इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। मिरान हैदर भी आरजेडी से ताल्लुक़ रखते थे, आरजेडी की जो यूथ विंग है उनसे उनका ताल्लुक़ था, लेकिन जेल जाने के बाद आरजेडी के रहनुमाओं ने, नेताओं ने मिरान हैदर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। उनके दूसरे लोगों ने ज़रूर स्टेटमेंट जारी किया जो उनके जानने वाले हैं, आरजेडी में हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल की टॉप लीडरशिप है उन लोगों ने अपना कोई अहम किरदार नहीं निभाया। मुकदमा भी वो लोग नहीं लड़ रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों का मुकदमा लड़ रही है उसमें सबसे बड़ा नाम है एपीसीआर का, यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। नदीम खान इन सब के मामले को देखते हैं, लगातार वो जो कैदी हैं उनसे जेलों में जाकर मुलाकात करते हैं। अभी हाल ही में खालिद सैफ़ी को एक हफ्ते के लिए ज़मानत भी मिली थी। माजी में उमर खालिद को भी एक दो मरतबा ज़मानत मिल चुकी है। शर्जील इमाम को अभी तक एक दिन के लिए भी ज़मानत नहीं मिल सकी है। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।